Yes, anyone? Students, why can't you get it? Simply the formula is E is equal to what? E is equal to negative n into d phi by dt. N stands for number of turns. Negative sign किसके लिए होता है? Lenz's law. Change in flux upon time. Flux का formula क्या है, students? What's the formula for flux? B into A. So differentiating B into A. यहाँ पे clearly बताया गया है कि what exactly field is changing with respect to time. यानी students dB by dt तो आएगा expression में. Field is changing with respect to time. What about the area? Area is constant. What is the radius given to you as S? So what exactly is the surface area of the disk? Pi r square. So what is the final answer? Minus pi s square d by dt. Students, क्या ये clear हुआ? 17 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. Students, it was given to you. It was given to you that the disk is given to you with radius as S, students, and the field is moving into it. It's in this manner. So rate of change of flux, we are finding out the induced electric field we consider, यानी EMF. तो तुम्हारा formula क्या है? Negative n into d phi by dt. What exactly is flux? It's B into A. Agreed. Cos of 0 will be 1 in this case. So what exactly is equal to number of turns? So we don't have number of turns over here, so I will not consider n. It's minus. Differentiating this, we consider as what? That is differentiating BA by dt. Area क्या है? Constant. So minus pi. Radius is S. dB by dt. That's the answer. And this answer will be in volt. Negative sign क्या बताता है? Lenz's law. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Okay. Okay, students. Let us go for now atoms, molecules, and nuclei. Students, I told you all to get the relation, students. Did you all get the relation, students? Students? We got the formula for radius of electron in the nth core orbit, students. So what exactly radius of electron in the nth core orbit we consider is? It's n square, h square, epsilon naught 0, n square, h square upon what exactly consider is? It's pi m e square. अगर मैं z के हिसाब से लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा एटॉमिक नंबर आएगा for radius. Agreed? Likewise, when I speak about with respect to velocity of electron, students in the nth Bohr orbit, then what's the velocity of electron in the nth Bohr orbit? हमारा formula क्या था? E square upon, students, it's 2 epsilon naught h into n. And over here, z what? Please, z is always with E square, students. Z stands for the atomic number. So ये है radius of electron in the first Bohr orbit. This is the velocity of electron in the nth Bohr orbit, and Rnth and Vn. If somebody asks you what exactly Rn over here is, then Rn we get is what? It's directly proportional to n square, students. It's n square by z, I can consider. Agreed? If I happen to go for Vn square, if I happen to consider, then what exactly Vn square I can write out in terms of it? We can write on Vn square, we consider is directly proportional to what? It's z by n, yani it's inversely proportional to. Suppose अगर मैं orbit number 1 लेता हूँ, students, then what exactly in this case? अगर मैंने n को 1 ले लिया, students, the first orbit for hydrogen atom, if I happen to consider, for hydrogen atom we consider, then what exactly the radius of electron for first Bohr orbit we consider is it's 0.53 angstrom. Students, did you find out the velocity of electron in the first Bohr orbit? क्या ये calculation किया फिर तुम लोगों ने? मैंने lectures जो conduct किए थे college में, students, did the calculation back at home, students? Anybody has got the answer for this?
Zafar, Chirag, what about you all two? Neither. You all get it or no? What's the value you're getting it? Zafar, if it's yes, what is the value you're getting it? Students, what's the value you're getting it? Anyone? Soham Patade, seems that you are not in lectures. तुमने मुझे mute करके रखा हुआ है. Students, your velocity will be nearly equal to 2.2 into 10 to the power of 6 meter per second. Did I say the speed is very large? Students? Students, didn't I say the speed is too large? Yes or no? क्या तुम लोग chats कर रहे हो यार? At least unmute करके हाँ तो बोलो. All the time I have to focus onto the device. All the time I have to focus onto the device. What are you all up to? Should I teach, look over here and teach, or should I look all the time onto the device? Can't you understand that? हाँ बोल दिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ करके. This is ridiculous. Yes, sir. Okay. Now I told you to get the answer, students. अभी the answers ना मैंने answers निकालने के लिए बोला मेरे students to get the answer for I told you about acceleration, students, है ना? मैंने acceleration के बारे में पूछा था, acceleration centripetal के बारे में पूछा था, students. Okay, I told you to find out for time period. I told you to find out for the frequency. Did you all get the answer, students? How do you get acceleration का? किसी ने आंसर निकाला students? Acceleration centripetal for a revolving electron in an n4 orbit with respect to principal quantum number. यहाँ पे देखोगे तो radius is directly proportional to principal quantum number. अगर तुम देखोगे, अगर suppose मैंने hydrogen atom लिया, Z को बानी रखा students, so radius of electron in the first 4 orbit is directly proportional to n square. यहाँ पे velocity of electron is inversely proportional to n. Students, अगर मैं acceleration centripetal ले रहा तो what's the formula for acceleration centripetal? Students, it's v square by r. ये तुम्हारा formula है. How is v inversely proportional to n? How is radius we consider is directly proportional to n square? So can I say acceleration centripetal is directly proportional to what? V के जगह पे नीचे 1 by n square आएगा. Are you getting it, students? V square will be equal to 1 by n square, and r is proportional to what? N raised to 2 we consider. So what are you getting in that case? Students? Somebody has posted the answer. Kush, how can n square will come? How can n square will come? अभी देखो ना, acceleration centripetal का formula क्या है? V square by r मैंने लिया. अगर तुम V square बात ये square करो ना. Hello, acceleration centripetal. अगर तुम इसको square करोगे, so what exactly? Let us don't consider z for the time being. We can consider it's e raised to 4 upon 4 epsilon naught square h square n square v square by r, and it divided by r. R का क्या है? It's n square h square epsilon naught upon what? Pi m e square z. Push. So now when I substitute back, what exactly it will be? It's e raised to 4 upon 4 epsilon naught square
h square n square मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. एग्री स्टूडेंट्स? ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. पाई n e square, I'm not going to take the z part of it, upon n square h square epsilon 0. now स्टूडेंट्स अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा? सी पाई m e raised to 6 हो जाएगा अपॉन 4 epsilon naught cube h raised to 4 n raised to 4. So students, यहाँ पे acceleration centripetal is inversely proportional to fourth power of principal quantum number. और वो तुम्हें directly मिल रहा है. How is velocity? Inversely proportional to n, तो v square तो 1 upon n square आ गया. What is r proportional to n square? तो कहने से into n square आएगा. तो कहने से is proportional to 1 upon n raised to 4. Students, क्या ये clear हुआ? Radius directly proportional to square of principal quantum number. Velocity inversely proportional to principal quantum number. Acceleration centripetal inversely proportional to fourth power of principal quantum number. और ये इसका फॉर्मूला होगा और ये आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा. क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? See one thing students, अगर ऐसा रहा ना, the way you all are getting it, take it from me, I will not ask a single word to you all. Have you all understood? I'll just go on speaking it out, erase it, speaking it out, erase it. I'm going to do in that manner. I'm not going to consider anything of that sort now. Because it's sick and tired of the way you all are doing it. You all are wasting your parents' money. You're wasting your parents' hard-earned money. This is how it is. Okay, forget about it. Now these things are not there in the books. Textbook में दिया लेकिन इसलिए दिया कि MCQs के हिसाब से. Now why should I do this then? Why should I do all these things stupidity for you all? And when you're solving multiple choice questions, when you get blocked yourself, you'll say things we don't know. This is what the problem with you all is. Students, when electrons are revolving around the nucleus of an atom of an element, of course, they move in anti-clockwise direction. Students, and यहाँ पे they do obey Kepler's law. Students, so one can say that T square is proportional to R cube. Students, you can use this square of the time period from gravitation से मैंने ये formula उठाया जो यहाँ पे applicable होगा क्योंकि वो भी circular path के लिए था, ये भी circular path के लिए, वो भी UCM था, ये भी UCM है. The electrons are performing uniform circular motion. So T square is proportional to R cube. So T is proportional to R raised to 3/2. अगर चलो ये नहीं आता है, forget about it. अगर directly click नहीं होता है, तो तुम क्या करो? तुम time के हिसाब से time is equal to what? So time is equal to what? Distance upon speed. Speed is equal to what? Distance upon time. So time is equal to 2 pi तो constant आया. Any time is what is R? Radius. So radius is directly proportional to n square आ गया. What is velocity? Inversely proportional to n. तो ये होगा 1 by n. So what is T is proportional to n cube. यानी यहाँ पे तुम्हारा आंसर आना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आएगा. नाउ क्या मैं ये यूज करके आंसर लेके आ सकता हूँ? क्यों नहीं? T is proportional to R raised to 3/2. What is R? Is proportional to n square. So can I say T is proportional to R के जगह पे क्या करना है? n square raised to the power of 3/2. 2 into आंसर. Am I getting n cube? Yes. आ गया. So students, this is how you can think in that manner and get the answer. Time is distance upon speed. उससे भी मुझे आंसर मिल रहा है. और Kepler's periodic law. We consider orbit the last one harmonic law. I can get T square is proportional to R cube. Frequency क्या है सर? Reciprocal of time. तो इसका inverse हो जाएगा. तो frequency क्या होगा? Direct proportional to what? It's 1 upon n cube or proportional to n raised to -3. And why am I giving you these students? Because when you solve MCQs, you need to go in this manner. I'm not going to ask to wait or whatever it is. I'm just going to explain and I'm going to erase it. Please students, okay? Sick and tired of your
the way you all are approach towards studies is as if doing a mehrmani by entering into online sessions or into the classroom also. Please do it on your parents, not to me. And if you are forcefully sitting, you can move out right now. Is that clear? Leave it. No need to enter inside. Okay, students. And the next part we are speaking about with respect to students, energy of an electron, students. Okay. Now, before going for energy of electrons, I'll be speaking about students with respect to your different spectrum series, students. Okay. That is your hydrogen spectrum we are speaking about, students. Now, what exactly is spectrum series we speak about, students? In Bohr's atomic model, students, you have a different kind of series to be taken care of. What is this? I told you very clearly. I have said it. The question was raised in the lectures also during that time, students. We were speaking about atom. Okay, atoms of hydrogen, when they jump from high energy level to lower energy level, students, they start giving out radiations, okay, of different frequencies, different wavelength. And that was put forward by different scientists. And उनका correspondingly जो series determined हुआ है, based on that they put forward the names. Okay, and the name starts with, we consider as what? It's the Lyman series. Okay, the next we consider is a Balmer series. The next we consider is Paschen series, P silent. Paschan, Paschen series we consider. Okay, so Lyman series, Balmer series, Paschen series, Fund series, P silent over here. And last one you can consider Humphrey, जो तुम्हारे स्कोप में नहीं है. So I'm not going to speak about that at all. So ये तुम्हारे 4 टाइप के सीरीज है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर these are the 4 types of series which you do. अभी देखो सीरीज का मतलब क्या हुआ, यानी जब भी एटम्स जंप करते हैं तो उस टाइम पे तुम्हें करस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ मिलेगा स्टूडेंट्स. The first one is Lyman series, second one is Balmer series, third one is Paschen series, fourth one is Fund series, students. In case of Lyman series, if you look into it, students, ये क्या है? ये एक ट्रांजिशन है. ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है? This transition is actually from where to where? From any higher energy level, students. From any higher energy level to a certain lower energy level, students. When I speak about certain higher energy level, students, to a certain lower energy level we consider. Yani, if I say high energy level can be what? It can be 2, 3, 4, 5, infinity. 2. A lower energy level जिसको मैं निर्णय करता हूँ P. Is that clear? So I can consider in this case as 1. Is that clear? यानी लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ मालूम है? अगर कोई ट्रांजिशन होता है एटम का फ्रॉम एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर हायर एनर्जी शेल्स, लेकिन फाइनली लैंडिंग अप टू व्हाट? लैंडिंग अप टू ग्राउंड स्टेट, P equal to 1. Such kind of emissions of wavelength and frequencies are corresponding to Lyman. So these particular Lyman series, students, are actually the wavelength associated for emission during an atom jumps, thereby we say an electron jumping from high energy level to orbit number 1, students. So that's what we call as the Lyman series, students. Now when you speak about for Lyman series, students, these are generally the series which lies in the ultraviolet regions. You can consider. ये जो Balmer series होगा, they are more in the visible spectrum we consider. When I say Lyman series, Balmer series, Paschen series, we consider Fund series, we consider. So what exactly these are? These are actually we consider based on your
infrared radiation, students. Far infra, in infra, near infra we consider. Is that clear? So students, there are different kinds of series that a student should keep in mind in that case. Is that clear? Now there is one more series in between. Lyman, Balmer we consider in that case. Passion के साथ में you can consider bracket. Okay, we consider. एक और एक series होता है students, it's bracket. और फिर आएगा तुम्हारा fun. और फिर आएगा Humphrey. The reason is my students क्योंकि ये जो जा रहा है ना ये purely ultraviolet radiations के लिए जाएगा. ये ध्यान में रखना. बाल्मर सीरीज किसके लिए जाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए जाएगा. Are you getting it? Now when I go for Passion series, it will be what? It will be near infra red radiations. Bracket series in infra. This is far infra. यानी ये तीनों इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करेंगे. ये वाला क्या करेगा? विजिबल. और ये अल्ट्रावायलेट. इफ यू लुक इनटू इट स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसको हम बोलते हैं विबग्योर. फ्रेंड्स ये विबग्योर है. वायलेट के पीछे वाले जो भी है वो अल्ट्रावायलेट कहा जाता है. स्टूडेंट्स ये बहुत ही शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं. इनका वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा स्टूडेंट्स. लेकिन जैसे तुम इस तरफ जाओगे तो वेवलेंथ विल गो ऑन इंक्रीजिंग. आई गेटिंग इट? विजिबल लाइट के अंदर बाल्मर आता है. एग्जांपल्स ऑफ बाल्मर के अंदर यू व्हेन यू कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, यू माइट कम अक्रॉस ओवर हियर एग्जांपल्स के अंदर एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा. स्टूडेंट्स यानी ये सारे विजिबल स्पेक्ट्रम है. हाइड्रोजन के विजिबल स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर वी कंसीडर वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ. इट्स लाइक दैट वी कंसीडर. लेकिन ये सारे विजिबल स्पेक्ट्रम है, हम देख सकते हैं इसको. इनको वी कैन सी इट. ये पूरे अल्ट्रावायलेट रीजन में. अभी देखो इसके बाद में क्या आ रहा है तुम्हारा, ये नियर इंफ्रा. एंड स्टूडेंट्स ये जो रेड कलर है उसके बाद में जो तुम्हें वेव बैंड्स मिलते हैं, तुम्हें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा या करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलेगी स्टूडेंट्स, उनका रेंज होता है. ये है अल्ट्रावायलेट का भी रेंज है स्टूडेंट्स. ये है इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन का स्टूडेंट्स दूसरा नाम है कॉल्ड एज हीट वेव्स. अगर सपोज इफ यू सी अ फायर, तो फायर के अराउंड अगर तुम खड़े रहते हो तो तुम्हें हीट फील होगी. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इंफ्रारेड रेडिएशंस. अगर कोई बल्ब ग्लो करता है, फिलामेंट बल्ब ग्लो करता है, तो उसके आजू बाजू में इफ यू ट्राई टू कीप योर हैंड अराउंड इट, नॉट टचिंग इट, you'll will feel that it's hot around it. That's infrared radiations. The sun's heat energy which is falling onto us is infrared radiations. We consider these are heat waves which heats up the entire earth. लेकिन ये जो रेडिएशन स्टूडेंट्स, इनका सबका एक बैंडविड्थ होता है. सबका एक बैंडविड्थ होता है. यानी अगर तुम बैंडविड्थ पकड़ के चलोगे तो कोई नियर इंफ्रा जाएगा. अभी देखो इसको देखूंगा तो ये नियर इंफ्रा हुआ, ये इनसाइड इंफ्रा हुआ, और ये फार इंफ्रा हुआ. फार इंफ्रा मतलब रेड से बहुत दूर चला गया. So these are the three kinds of light we consider. So what are the different series we consider? Your Lyman, Balmer, Passion, Bracket, Fund series. Now when you look into it, Lyman series के अंदर transition कहाँ से कहाँ होता है? It's from orbit number 2, 3, 4, 5 into 1. यानी तुम्हारा फाइनली लैंडिंग अप कहाँ पे होता है? ग्राउंड स्टेट पे होता है. वैसे ही तुम बाल्मर सीरीज जाओगे तो 2 ऑर्बिट नंबर p is equal to. Passion सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ था? हायर टू व्हाट? 3, higher to 4, higher to 5. यानी स्टूडेंट्स फंड सीरीज का मतलब क्या हुआ? अगर मैं देखो तो व्हाट एग्जैक्टली ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? स्टूडेंट्स ये ट्रांजिशन होगा 6, 7 इंफिनिटी टू p इक्वल टू 5. ये क्या होगा? ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? फिर से सर 5, 6, 7 इंफिनिटी टू p इक्वल टू 4. ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? 3 पे जाना है तो 4, 5, 6, 7 इंफिनिटी टू 2. बाल्मर ट्रांजिशन इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? 3, 4, 5 इंफिनिटी, 6, 7 इंफिनिटी टू p. ये ध्यान में रखना है. तो स्टूडेंट्स ये सारे तुम्हारे कौन से होंगे? ये सारे तुम्हारे हायर एनर्जी लेवल, और ये होगा तुम्हारा लोअर एनर्जी लेवल. कहाँ पे एटम लैंड करेगा?
Please, I told you about hydrogen gas. प्लीज हाइड्रोजन एक चेंबर है जहाँ पे हाइड्रोजन गैस को तुम एक्साइट करते हो, जब हाइड्रोजन एटम्स लैंड अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो लैंड अप होगा, वो वाला कांसेप्ट है. सो दिस गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज विद कंसिडर लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड. अभी सपोज इसी का अगर किसी को रिलेशन चाहिए तो हाउ डू यू गो अबाउट विद इट? how do you consider for the relation for this? Then what exactly a student will simply go for? The student can simply go for the relation from where. यहाँ पे जो तुम्हारा concept है वो कहाँ से आता है? ये तुम्हारा आएगा from your third postulate, students. If you look at the first postulate, students, what exactly the first postulate speaks about? First postulate speaks about that all electrons revolve around the nucleus of an atom of an element performing uniform circular motion. जहाँ पे हमें क्या मिला था? mv square by r is equal to 1/4 pi epsilon naught. वैक्यूम है तो k equal to 1 होगा. E square by r square आया था. ये तुम्हारा फर्स्ट पॉस्टुलेट है. सेकंड पॉस्टुलेट क्या था? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी. सिंस पहले जो ओल्ड क्लासिकल थियरी था वहां पे बताया जाता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी लूज करता है, यानी वो रेडिएशंस वेवलेंथ थ्रो करता है, उससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के पुल की वजह से वो लैंड अप हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता है. तो उसका पाथ सर्कुलर से स्पाइरल हो जाता है और फिर वो लैंड अप कर जाता है. लेकिन एज सच हमने देखा कि एटम इज स्टेबल इन दैट केस and nucleus is we consider as unit positive charge, complete atom is electrically neutral in that case and stable we consider. तो यहाँ पे वो था old classical. I getting it? New classical में क्या बोला है कि electrons we consider, that is electromagnetic theory, electrons revolve around the nucleus in specific orbits with constant energy without radiating any energy. And those electrons whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi will revolve in specific orbits. ये वाला तुम्हारा concept था. Angular momentum का formula मैंने क्या दिया था? mvr. और mvr के हिसाब से हमने ये formula लिया था और ये वाला लिया था. हमने got these two equations. आज इसके अलावा हमने acceleration के लिए बता दिए, मैंने time period के लिए बता दिया, frequency के लिए बता दिया और मैंने जानबूझ के principal quantum number के साथ में लिया क्योंकि इसी के related MCQs होते हैं. They might ask you for the first orbit and fifth orbit. Like that, they'll try to throw it. Then I'm speaking about hydrogen spectrums. Hydrogen spectrum का मतलब क्या? Transition हो रहा है. Transition from where to where? From higher to low. लेकिन ये कहाँ से आता है? From the third postulate. Third postulate क्या करता है? Third postulate ये बताया that the difference in the energy of the electrons, students, the difference in the energy levels of the electrons, यानी En minus Ep, where n is high energy level, p is lower energy level. तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप मारता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशंस in the form of h nu, students, and nu stands for frequency. And what's the relation? C is equal to nu into lambda. ये इक्वेशन लेते हुए we can get the mathematical relation for this. अब इसका mathematical relation कहाँ से आएगा? एनर्जी से आएगा. एनर्जी से आएगा. तो स्टूडेंट्स को पहले एनर्जी के बारे में पढ़ना जरूरी है, बाद में इसको हाथ में लेना जरूरी है. तो इसको हाथ में मैंने क्यों लिया? क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये पहले दिया है, लेकिन एक्चुअली इसका फॉर्मूला तुम लैंड अप वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला दिया स्टूडेंट्स, वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला दिया 1/λ, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर. स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना, व्हाट इज वेव नंबर? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट. इसका यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स. वेव नंबर is given by what formula? 1/R. This is called as Rydberg's constant, students. Capital R is Rydberg's constant and capital R is 1.097 into 10 to the power of 7. Students, that's the constant part of it. A constant value, Rydberg's constant. Into bracket, what exactly I'm getting it? Into bracket 1/n square, students. Sorry, 1/p square minus 1/n square. And यहाँ पे आएगा हमारा p और यहाँ पे आएगा n. What exactly I'll consider? n is greater than p. n क्या है? High energy level. p is lower. स्टूडेंट जब भी तुम ये फॉर्मूला लिखते हो ना स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं. अभी ये फॉर्मूला मैं एनर्जी से डिराइव करूंगा, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. लेकिन ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए हमेशा ये ध्यान में रखना 1/p² माइनस n स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब भी तुम इसका एलसीएम निकालोगे स्टूडेंट्स तो n स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस p² आएगा, यानी n इज ग्रेटर देन p. स्टूडेंट्स यू शुड गेट अ पॉजिटिव आंसर. योर n इज ऑलवेज हाई एनर्जी लेवल, p इज लोअर एनर्जी लेवल. नाउ व्हेन यू स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज,
Since अगर सपोज तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया तो you can get your answer accordingly. Capital R is what? 1.097 into 10 to the power of 7 meter inverse, students. That's your value, constant value we consider for Redworks. ये Redworks constant है, capital R की value. और ये तुम निकालोगे, easily you'll get the answer. कहाँ से? Energy के formula से. अभी देखो, for example कोई भी एक transition ले लो. Suppose अगर मैं बोलता हूँ transition for Balmer series is from 3 to 2. कहाँ से देखना students? हम 3 to 2 जा रहे हैं. यानी n क्या होगा? 3. p क्या होगा? 2. 1/4 minus 1/9. 1/4 minus 1/9. इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 36 नीचे होगा, 9 minus 4 5. Am I getting a positive answer in the numerator? Yes. यानी स्टूडेंट्स मेरा आंसर क्या हुआ? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. 1/λ is equal to 1/r 5/36. मुझे क्या चाहिए? लैम्बडा. क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3 to 2, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इट विल स्टार्ट emitting certain wavelength. वो wavelength हम फाइंड आउट करेंगे. अब ये कैसे निकालोगे? ये रेसिप्रोकल का फॉर्मूला. तो लैम्बडा क्या होगा? So 36 r upon what? 5 we consider in this case. Are you getting it? Are you getting it in this case? So what exactly No, I'll get it? no, sir. So now I can consider in terms of it, you can get your answer accordingly. Is that clear? No, Yes, sir. sir. No, sir. Pardon? सर ये वेव नंबर नहीं समझ आया. Okay, coming to ये वाला concept मैं derive करने के बाद में लेता हूँ बस. I'll put forward बस wave number वाला concept. ये सिर्फ for the time being तुम्हें formula ध्यान में रखो बस. लेकिन ये कहाँ से आ रहा है students? यहाँ से आ रहा है. Now can I go for this? Energy. I will answer now. How to get this number? Please pay attention. Can you students tell me what is the total energy of a revolving electron? बताओ. हमें energy के बारे में चाहिए students. So what's the formula for energy? The answer is students. What exactly total energy? तो तुम क्या बोलोगे सर? टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट स्टूडेंट्स, इट विल हैव व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? सर इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, इट विल हैव काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. मुझे क्या चाहिए? Total energy of electron. Let us find out in nth Bohr orbit. क्या तुम इसका आंसर निकाल सकते हो अपने आप? तो कोई भी स्टूडेंट होगा बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सर काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं. Why not? You can get the answer accordingly. And kinetic energy is given by what formula, sir? Half mv square. That we can get the answer accordingly. Agreed? What about potential energy, students? We get your answer for potential energy also. ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टूडेंट्स? बता सकते हो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टूडेंट्स? Electrostatic. Yes, electrostatic potential energy, students. What is electrostatic potential energy? What is electrostatic potential energy? It's a work done to move a charge from a point within the orbit to a point at infinity. Students, the answer is now. V is equal to W upon Q. Work done or potential energy is simply potential at a point into Q. And students, what's the formula for potential at a point we consider is? What is the formula for potential energy at a point we consider, students? KQ by R. इस हम लोगों ने पढ़ा होगा students.
Sorry, students. Okay, very sorry. They are coming in next half an hour. Okay, students, listen carefully, students. V is equal to W upon Q. Work done is equal to potential energy, and potential energy is equal to V into Q. Students. So, can you give me the formula for potential, students? Hi, students, can you give me the answer for potential? So can you please repeat? Pardon? Can you please repeat, sir? My question to you is, I want the formula for electrostatic potential energy. What is the formula for electrostatic potential energy? बताओ. Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is a work done in order to move a charge from a point in an orbit to a point at infinity, or the work done to move a charge from infinity to that point. And what's the formula? चिराग, potential का formula. अच्छा, तुमने work done का formula दिया है ना? Friends, work done is equal to, and what is gravitational potential? What is gravitational potential, students? Sorry, what exactly electrostatic potential? K Q1 Q2 by R. K by R. Only Q by R होगा. Friends, Okay, sir. ये सिर्फ K by R. So how to remember it? Advanced enough, please. Everybody think carefully. So again, I'm trying to speak about students. अभी इसका formula मैं पहले बता देता हूँ. Students, please pay attention how to remember. Since potential at a point is defined as the work done to move a charge from one point to another. ये clear है? तो अगर मुझे वर्क का फॉर्मूला चाहिए तो वर्क का मतलब क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू. प्लीज स्टूडेंट्स भूलो मत इन चीजों को. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर? फोर्स तो कूलम्ब्स फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी उसको हम बोलते हैं के. एग्रीड? फोर्स सर सोर्स तो आएगा Q1 Q2, इफेक्ट भी आएगा, उनके बीच में डिस्टेंस r² भी आया. यानी ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स. इनटू स्मॉल r अपॉन क्यू. क्यू कैंसिल हो गया, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर V. So what's the formula for V if I consider potential at a point we consider is what? मैंने क्या बोला था? KQ by एक R आएगा बस. And since potential at a point is always negative, we consider it's minus KQ by R we consider. Agreed? क्या ये क्लियर हुआ? अगर मुझे वर्क का चाहिए तो इसके साथ में क्या आ गया? सिर्फ स्मॉल क्यू आ जाएगा. खत्म हो गई बात. ये तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला हो गया. व्हाट इज दिस वर्क डन? इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो स्टूडेंट्स, अगर किसी ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा तो व्हाट एक्चुअली माय आंसर फॉर पोटेंशियल एनर्जी? सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ये क्या है? ये कैपिटल क्यू क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज कैपिटल क्यू स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैपिटल क्यू? व्हाट इज कैपिटल क्यू? सोर्स. स्मॉल क्यू इफेक्ट. यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है? यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है? सर आपने हाइड्रोजन एटम लिया है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा. ये क्या है? इफेक्ट. सर इसका भी चार्ज E, इसका भी चार्ज E. स्टूडेंट्स, जब भी जाके तुम जब भी इसकी टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो वहां पे E² लिखा होगा. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. चार्ज इनसाइड and charge over here is exactly same because we're speaking about hydrogen atom, and hydrogen atom के अंदर we are going for protium. प्रोटियम को देखो तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सोर्स और ये. हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. And what is the distance? Distance is Rn. तो ये Rn आ जाएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? और Z ऊपर आ सकता है. और ये आंसर किस में होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इन नेगेटिव. ये तुम्हारा नेगेटिव में आ गया. अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हो तो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ Z, डजंट मैटर. ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ. लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. Is this clear to all of you all now?
हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Clear. The total energy, the dance से ना वापस में बोल रहा हूँ, total energy of a revolving electron around the nucleus of an atom of an element in case of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम मैंने प्रिसाइजली लिया है क्योंकि एक प्रोटॉन है, क्योंकि तभी जाके तो मुझे ई स्क्वायर मिला ना स्टूडेंट्स, दोनों का चार्ज सेम है, इक्वल इन मैग्नेट ऑपोजिट इन नेचर वी कंसीडर. I get it. And when I speak about the nature of the charges also we can consider एक positive और negative. We can run on simply in terms of negative and negative. Because this is work done, students, potential energy. And potential energy is a scalar quantity. Scalar के अंदर तुम्हारा nature of charge आएगा. Students, nature of charge आएगा. That's why I consider in terms of minus. We consider. Is that clear? Now when I speak about it, students, let us go for in this case. If in case if I happen to consider for total energy, then total energy is what? Kinetic plus potential. अभी can you get the answer for kinetic energy, students? चलो बताओ. Formula क्या होगा kinetic energy का? What is the answer? Sir, kinetic energy क्या? ध्यान से सुनो students. Kinetic energy का formula क्या होगा? Half m velocity of electron in the nth bar orbit. Students, what is the velocity of electron in the nth bar orbit? Agreed? Is that clear? So now can I say it's half m vn square, students? When consider this case for vn square, students, I will not consider the atomic number for the dynamic, students. मैं सिर्फ vn square ले रहा, तो vn square का मतलब क्या होगा, students? e raised to 4 आ जाएगा upon ये square आ जाएगा, तो 2 square is 4, epsilon naught square, h square, n square. क्या ये clear हुआ, students? Sir, वो Z नहीं लिखने का? Z लिखेंगे ना. I'll put forward. लेकिन वो हाँ, Z okay sir. you will put forward, doesn't matter. ये z square आएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, z square ही आएगा ना तुम्हारा. हाँ. You can see in this case. Is this clear? Yes sir. Now when I speak about it, kinetic energy का ये फॉर्मूला, यानी kinetic energy को तुम्हें पॉजिटिव मिला. अगर सपोज वो पोटेंशियल एनर्जी को ये निकाल देता हूँ मैं, और इसको भी मैं ई स्क्वायर में लिखता हूँ फॉर द टाइम. स्टूडेंट्स, 4 pi. Can you get an answer in this case? Potential energy we consider is equal to what? क्या तुम इसका आंसर निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी का क्या आंसर आएगा? ये देखो, ये m e raised to power of 4 upon 8 epsilon naught square h square n square. I getting it? Is this clear, students? Yes sir. Whereas what about potential energy we can consider? Potential energy का formula क्या होगा, students? Minus e square upon 4 pi epsilon naught. अभी ध्यान से सुनना, Rn है. Students, what exactly we have? Rn यहाँ पे है, हमें यहाँ पे भी Rn को सब्स्टिट्यूट करना है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Rn को सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी जाके स्टूडेंट्स वो Z, देखो ऊपर वाला Z था और ये वाला Z ऊपर जाके तब जाके यहाँ पे भी Z स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी Z स्क्वायर आएगा. अगर देखो Rn का फॉर्मूला डालो स्टूडेंट्स, व्हाट इज Rn गिवन टू बी? इट्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ऊपर चला जाएगा m e स्क्वायर z इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले z था, वो z के साथ में z स्क्वायर आ गया. अगर मैं यहाँ पे z स्क्वायर डालता हूँ तो ये भी आ गया. देखो दोनों केस में z स्क्वायर आ गया. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बाय रेशियो 1/2. एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट. वंस अगेन आई स्पीक अबाउट इट स्टूडेंट्स. जब भी तुम इसका डेरिवेशन करते हो स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट वरीड इन दैट केस. I'm just erasing this part. Once again I'm speaking about students. Everybody listen carefully. एक सिंपल रिलेशन निकालना. जब भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछे ना स्टूडेंट, सीधा हाफ m v स्क्वायर डाल देना. एग्रीड? वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो हाफ m vn स्क्वायर क्या हो जाएगा?
So z square e raised to 4 स्क्वायर कर दो तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर आ गया। तो फाइनल आंसर अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, z स्क्वायर m e raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। यानी स्टूडेंट्स ये आंसर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और डिनोमिनेटर देखो स्टूडेंट्स 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। स्टूडेंट्स पोटेंशियल में एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर मिलेगा, तो सेम डिनोमिनेटर मिलेगा लेकिन फैक्टर ये 8 है तो वहां पे 4 होगा, ये पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में होगा। अभी देखो लेट अस गो फॉर इट। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स, electrostatic potential energy we consider as electrostatic potential at a point into charge, and potential at a point we can consider in terms of minus kq by r. So minus 1 upon 4 pi epsilon naught k q by r we consider in this case. Are getting it? So now we consider into e, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, अपॉन r लीस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, इट्स माइनस 1 upon 4 by epsilon naught source and effect upon Rn. Do you know Rn? Yes. अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस e square upon 4 pi epsilon naught. What is Rn? n square h square epsilon naught. ये पूरा न्यूमरेटर में चला जाएगा, pi m e square। इसके लिए तो z था पहले ही फॉर पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इफ आई हैव टू कंसीडर तो मेरा z स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सी what's the formula for potential energy? Answer negative है, yes negative है। Is pi getting cancelled? Yes, pi getting cancelled। Am I getting m? Yes, I'm getting m। Is e raised to 4 over here? E raised to 4 upon 4, yes। Epsilon naught square, yes। h square, yes। n square, yes। ये भी जूल में, ये भी जूल में। अभी ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूलास, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये देखो ये फॉर्मूला जब भी तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो ये देखो एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दिस। डिनोमिनेटर दोनों केस में देखो, epsilon naught h square n square, epsilon naught h square n square। Numerator m raised to 4, m raised to 4, z square, z square, 1 by 8, 1 by 4, but this is with what sign? Negative sign। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. Now if I happen to add it, what exactly total energy का फॉर्मूला क्या होगा? तुम्हें करना क्या स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी में क्या करना है, सब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो ना। तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकालूंगा तो सर z स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, e raised to 4 बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा सर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, h स्क्वायर बाहर आ जाएगा, h square n 1 by 8 minus 1 by 4। बस फिर सारे टर्म्स बाहर आ गए। आई गेटिंग इट? z स्क्वायर बाहर आ गया, आई गेटिंग इट? m इज आउटसाइड, वी कंसीडर e raised to 4 एप्सिलॉन h स्क्वायर, एक में होगा 1 by 8 और एक में होगा 1 minus। इसको अगर सॉल्व करो तो व्हाट एग्जैक्टली आंसर विल बी सर 4 minus 8, 4 minus 8 यानी कितना होगा, -4। आई गेटिंग इट? upon 4, so what exactly I consider in terms of it? Total energy 1 by 8। स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली 8 का अगर मैं एलसीएम भी अगर मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स तो व्हाट एग्जैक्टली आंसर 1 by 8 होगा, लेकिन आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? टोटल एनर्जी Negative. नेगेटिव में आएगा। तभी जाके शायद तुम लोग ने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, total energy of an electron revolving around the nucleus of an atom of an element students is always in negative। अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है, मैंने वहां पे लेक्चर्स में भी क्लास में बोला था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट माइनस में आ रहा था, -13.6 eV में आ रहा। ये हमने आंसर जूल में निकाला, यू कैन कन्वर्ट जूल टू eV आल्सो। उसके बाद वाला क्या था, -3 वाला -1.51, उसके बाद वाला -0, लेकिन नेगेटिव में यहाँ से आ रहा है। ये जो सब ऐड करोगे तभी तुम्हारा आंसर क्या होगा, -z स्क्वायर m e raised to 4 अपॉन क्या आएगा, 8 आएगा स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, एंड दिस आंसर इज इन जूल। क्या ये क्लियर हुआ? टोटल एनर्जी। हाँ स्टूडेंट्स,
Students, is it clear? Total energy of electron in nth core orbit. What exactly your relation will be? So total energy is inversely proportional to n square. अभी देखो सारे वेरिएशन आ रहे हैं स्टूडेंट्स. शायद प्रॉब्लम्स पूछेंगे एमसी, इसलिए स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज या इसके प्रॉब्लम्स थोड़े से टीडियस क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? इसके क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स होते हैं इजी, लेकिन स्टूडेंट्स को ट्रिकी क्यों लगते हैं, टफ? क्योंकि इतने सारे कांस्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स. बोर्ड एग्जामिनेशन में तो हालत खराब कर देते कि सबके कांस्टेंट्स हैं. एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं. उनकी वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में पहले दी जाती है या प्रॉब्लम के साथ में दी जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस के पहले दी जाती है. तो तुम्हें वहां से स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पेपर होता है ना बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, अच्छे स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हैं तो वो कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं अच्छी तरह से. उससे जज करेंगे कि यार एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर का क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया. अगर वहां पे उन्होंने एच देखा, एप्सिलॉन नॉट देखा, एच आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, उसका मतलब चलो एटम्स और न्यूक्लियस के प्रॉब्लम्स है भाई. वहां मेरी बैंड बज गई अभी. अगर नहीं प्रिपेयर किया तो हालत खराब है. अगर उसमें से वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे या कम पूछे. सो दिस इज हाउ वन कैन. लेकिन ये आना जरूरी है, ये कैलकुलेटिव है. और वही चीज जब तुम एमसीक्यूज में कन्वर्ट करते हो ना स्टूडेंट्स, देन यू नीड टू रिमेंबर द कांस्टेंट वैल्यूज. जैसे कि मैंने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे बोला था, इट्स व्हाट, इट्स n स्क्वायर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी 0.53 टाइम्स n स्क्वायर. सो इट्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.22 × 10⁶ टाइम्स अपॉन n. यानी बाकी दूसरे ऑर्बिट के हमें वेलोसिटी मिल सकता है. acceleration directly proportional to n raised to 4. Time period we consider proportional to r cube. We consider r raised to 3/2. If I happen to consider in terms of n, principal quantum number, it's n cube. Frequency n raised to -3. वैसे यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, ये फॉर्मूला हुआ इस काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. यस. पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर विद नेगेटिव साइन. अभी तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है? अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर. लेकिन तुम अगर देखोगे ना, देखो काइनेटिक और टोटल, don't you think so there is a similarity between both of them? m e raised to 4, m e raised to 4, z square, 4 2s are 8, 8. लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में है. ये ध्यान में रखना. ओ यानी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, kinetic energy of revolving electron in nth core orbit is numerically equal to total energy. Yes, numerically can be equal, but total energy is always in negative. हमेशा नेगेटिव में होगा, ये ध्यान में रखना. अगर तुम पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में देखोगे रिलेशन, तो ये क्या, ये 8 आ रहा है, ये 4 आ रहा है. अगर सपोज मैं दोनों का रेशियो निकालूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो में क्या आ रहा है? 1/8 आ रहा है. एग्रीड. पोटेंशियल के अंदर 1/4 यानी 4/1 हो गया. आंसर क्या आएगा? 1/2. लेकिन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव में. तो कहना है काइनेटिक एनर्जी इज -u/2. स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इज -u/2. ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? यस सर. यानी ये तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए घर पे बैठ के कि इसको मैं अलग अलग तरीके से कैसे लिखूं. सिखाने वाला तो सिखा के भाग गया. अभी मैं इसको अच्छी तरह से उसको कैसे फॉर्मेट में लाऊं सो दैट आई कैन रिमेंबर एंड रिकलेक्ट इट. इज दैट क्लियर? Is it clear to all of you students? Yes sir. So you got the total energy students. I'm putting it back over here now. Just putting the formula, okay students? So what's the formula for kinetic energy students? Kinetic energy of revolving electron is always in positive students. And the formula is z square n e raised to 4. And this will be 8 epsilon naught square h square n square.
Potential energy will be always in negative, students. Potential is always in negative. We consider it's minus z square n e raised to 4. Exactly same with 4 epsilon naught square h square n square, students. Agreed? That's potential energy we consider. Both these answers are in joule. I haven't got it in EV yet. Total energy is sum of kinetic plus potential. So my answer will be negative, and it is numerically equal to kinetic. So it's z square n e raised to power of 4 upon 8 epsilon naught square h square n square. And this answer also in joule. Now, if I want to convert from joule to EV, students, 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. तो अगर मुझे joule to EV करना तो क्या करूंगा? Divide this expression by 1.6. Agreed. Now the answer सुनना. अभी suppose मैंने पूछा what is the total energy of electron in nth Bohr orbit? Listen carefully, students. Total energy of electron in nth Bohr orbit. Then, if in case if I happen to consider, then you can get in terms of what? Minus 13.6 z square upon n square n e. ये तुम्हारा relation होगा. Now, a student who's wisely listening to it, ये कहाँ से आया students? ये देखो. Students, ये ध्यान रखना. Suppose if I take the electron to be in the first Bohr orbit, तो ये formula लो ना. And for which? For hydrogen atom, students. For hydrogen atom, suppose if I happen to consider, students, your z is equal to 1, we consider, students. Agreed? N क्या होगा? The first quantum number we consider 1. Agreed? So now solving it in this case, what am I going to get it? अगर मैं ये पूरा solve करूँ, students, ध्यान से देखना, ये पूरा अगर मैं solve करूँ, sorry, ये पूरा constant है, students. ये पूरा अगर मैं solve करूँ तो students ये आंसर मेरा जूल में है. And that joule can I convert to EV? Why not? Divide by 1.6. That answer is minus 13.6. क्या ये clear हुआ, students? हाँ, students. Total energy of electron in the first Bohr orbit. Answer is minus 13.6. चलो इसको भूल जाओ. अगर मैंने पूछा what is the total energy of electron in the first Bohr orbit, तो डाल दो ना, n equal to 1 डाल दो ना. कौन सा एटम ले रहा हूँ सर? हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ मैं. एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1. हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स. V1 ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डाल दो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर. Put all these values, what's my answer be? And divide by 1.6 into 10 to minus 19. What's my answer? Minus 13.6 eV. ये तुम्हारा 13.6 eV में आ गया. क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Fine. Yes, sir. Now listen carefully. Now we go for this formula. Okay, ट्रांजिशन के बारे में, जो वेव नंबर के बारे में बता. Students, what was third postulate? What did I say about third postulate? Third postulate states that suppose if I make an electron to jump from high energy level to lower energy level, तो हमारा इक्वेशन क्या था? सर, En minus Ep is equal to h nu. यहाँ पे क्या है सर? N is greater than P. ये high energy level, lower energy level. तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इन द nth बोर ऑर्बिट? स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट. तो हाँ, ये देखो, यही फॉर्मूला आएगा तुम्हारा. ध्यान से सुनना, माइनस z स्क्वायर m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square n square. Agreed? अगर मैंने पूछा can you give me the formula for energy of electron in the p orbit, fifth orbit, where p is less as compared to n, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पे n की जगह पे p डालना है. माइनस z स्क्वायर m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर आएगा. हमें वेव नंबर का फॉर्मूला चाहिए था, तो वेव नंबर का फॉर्मूला के लिए हमें थर्ड पोस्टुलेट की जरूरत थी. तो देखो, मैंने दोनों एनर्जी की इक्वेशन डाल दी है.
और उसको मैंने क्या लिख दिया, एच न्यू। स्टूडेंट्स एच न्यू का मतलब क्या हुआ, और इस एच न्यू तुम लिख सकते हो सर एच न्यू एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी। ई एन क्या है सर, ये रिलेशन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस minus z square m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square p square। स्टूडेंट्स माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं आगे लेता हूँ और इसको पीछे ले लेता हूँ, इसको मैं आगे लेता हूँ, इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, तो कहना है एच सी बाय लैम्डा यानी 1 बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट्स क्या बाहर आता है, तुम्हारे सबसे कांस्टेंट्स क्या बाहर आएगा, तो बोलेगा सर जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एम ई रेज टू 4 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन 8 भी बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी आ जाएगा, एच स्क्वायर भी आ जाएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, एच स्क्वायर भी आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा, चलिए माइनस इंटू माइनस आप बोल रहे थे, इसको पहले लिखूंगा बाद में ये, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आया। यहाँ पे जो एच सी था ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिख दो, वो अब देखो यहाँ पे एच सी मैंने वैसे रखा, चलो एच सी में वैसे रख रहा हूँ मैं। अभी मुझे क्या चाहिए, वेव नंबर का फॉर्मूला चाहिए ना, तो 1 बाय लैम्डा चाहिए, 1 बाय लैम्डा चाहिए, तो कहना है टेक एच सी ओवर हियर, तो देखो ये क्या बन गया, एच क्यूब एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फ्रेंड्स अभी पता चला व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ z square m e raised to power of 4 8 epsilon naught square h cube into c। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और ये जो पूरा है, ये जो पूरा है z को निकाल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। So now if I want to write down my formula, how do I write down students? How do I write down? Therefore, 1 by lambda is equal to z square, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट में r लेता हूँ, into bracket 1 upon p square minus 1 upon a square। क्या ये क्लियर हुआ students? What is the value of r? What is the value of r? What did I tell you students? What is the value of r? I gave it to you as 1.097 into 10 raised to 7 meter inverse। 1.097 into 10 raised to 7 meter inverse। क्योंकि तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्रेंड्स, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना। हेलो, यूनिट कैसे आता है, तो 1 by lambda is equal to r, lambda is in meter, so what is the unit of r, 1 upon meter या मीटर इनवर्स। अभी क्लियर हुआ जिसने बोला था सर मुझे रेडबर्ग, मुझे वेव नंबर के बारे में नहीं पता चला, इज दिस क्लियर नाउ? Students, are you getting it? Yes, sir. So students, what exactly the conclusion I'm going to draw? The answer is students, how's the flow of the chapter? This flow of the chapter was very easy. First of all, तुम्हारा old classical theory था, okay, Rutherford's model वो सब theoretical part है, okay, then it will be about Dalton's atomic theory in that case, okay, कि atom कैसा होता है by scattering of alpha particles। फिर old classical theory में बताया था कि nucleus unstable है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ होकर घुस जाता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो गलत था, तो उसको सारे रेक्टिफाई कर दिया, और उसी के रिलेटेड फिर बोर्ड ने अपने पॉस्टुलेट डाल दिए। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स को ध्यान में रखना, और यहाँ पे हमने थर्ड पॉस्टुलेट यूज किया है, En minus Et is equal to h nu and mu is c by lambda, where n is the electron in the nth core orbit and electron in the fifth orbit we consider, where n is higher energy level, p is lower energy level। तभी जाकर तुम इसको सबट्रैक्शन करोगे स्टूडेंट्स, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये 3 तुम्हें फॉर्मूला, 3 बोर्स पॉस्टुलेट तुम्हें याद रखने। जैसे तुम 3 बोर्स पॉस्टुलेट्स को अच्छी तरह से याद करोगे, तो वहां पे तुम्हें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मिलेगा। जैसे रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। I'm getting it? You can find out the formula for time period, you can find out the formula for frequency। ये 3 चीज तुम निकाल सकते हो वेरी इजीली।
जैसे तुमने वो कंप्लीट किया फिर तुम्हारा किस के ऊपर जाता है, फिर तुम ये बाद में करना, ये बाद में करके टेस्ट में पहले गेस्ट या ट्राई टू थ्रो इट एट, लेकिन ये बाद में करना। पहले तुम सीधे चले जाओ एनर्जी के ऊपर। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके उसको वो जो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में एट दैट इंस्टेंट इट हैज बोथ द एनर्जीज। उसको काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होगा। कौन सी एनर्जी है ये? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज गिवन ओवर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर तुम याद रखोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के जो वही फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। वही तो हुआ ना, q1 q2 की जगह पे e स्क्वायर डाल दिया हमने अपॉन डिस्टेंस rn। अगर rn का मैं फार्मूला डाल दूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आ जाएगा, माइनस z स्क्वायर m e टू पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। वही अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी के अंदर डाल दिया तो व्हाट एग्जैक्टली z स्क्वायर m e टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, लेकिन मैं टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बट विद व्हाट साइन? नेगेटिव साइन। और ये सारे फार्मूलाज मैंने जूल में दे दिए। अगर मुझे जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय हाउ मच? 1.6 into 10⁻⁹. Now if I say what is the energy of electron in the first Bohr orbit to -13.6, अगर मैंने डिवाइड बाय कर दिया तो 1.6 तो मेरा आंसर आ गया, ईवी में आया है ना। सपोज अगर मैंने पूछा what is the energy of electron in the second Bohr orbit, लेकिन कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स एटम्स के ऊपर अगर तुमने ऑक्सीजन लिया तो उसका एटॉमिक नंबर लेना है, समझ में आ रहा है? लेकिन हम हमारा पूरा थ्योरी आ रहा है हाइड्रोजन एटम के हिसाब से जाना, तो z को मैं मान ही लूंगा अपॉन, अगर मैंने बोला सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 तो n स्क्वायर विल बी व्हाट? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 -13.6 अपॉन 4 का आंसर क्या होगा? -3.6 eV। यानी स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो रहा है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पर ऑर्बिट, आंसर क्या होगा? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, या -21.7 into 10 to the power of 17 joules। जूल्स में भी आंसर है स्टूडेंट्स, या माइनस RCH अपॉन n स्क्वायर। दिस इज आल्सो माय आंसर, माइनस RCH। R क्या है? रेडवर्क्स कांस्टेंट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। यू कैन गेट इट, तुम इसका रिलेशन निकाल सकते हो टोटल एनर्जी का। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? जैसे तुम्हारी ये टोटल एनर्जी क्लियर हो गया, सीधा तक चले जाओ थर्ड पोस्टुलेट के ऊपर, गेन माइनस ईपी। सो फाइंड आउट ये है टोटल एनर्जी। देखो यहाँ पे मैंने n स्क्वायर डाल दिया स्टूडेंट, देखो ये n स्क्वायर है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n पर ऑर्बिट नेगेटिव में आएगा। ओके, फिर p में तो नीचे p स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, ये भी नेगेटिव में आ गया, लेकिन n इज ग्रेटर देन p, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, इसको आगे ले लिया, इसको पीछे ले लिया। ये पूरा जो कांस्टेंट है उसको मैंने क्या कर दिया? रेडवर्क्स कांस्टेंट, और उसकी मैग्नीट्यूड लिख दी। वो क्या बन गया मेरा? वेव नंबर का फॉर्मूला। Now can I speak about the spectrum, hydrogen spectrum, the different kind of series? Yes sir, Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, Fund and Humphrey. Humphrey है नहीं। अब ये सारे सीरीज क्या बताते हैं? जंपिंग ऑफ एटम, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर। अगर सपोज मैंने हाई एनर्जी लेवल टू ऑर्बिट नंबर 1 ले लिया तो लाइमन सीरीज, उसमें से जो वेवलेंथ निकलेंगे स्टूडेंट्स, जो वेवलेंथ निकलते हैं वो कौन से होंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हिसाब से होंगे। अगर सपोज मैंने बाल्मर सीरीज लिया तो जंपिंग फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल स्टूडेंट्स, तो वहां पे कौन सा होगा? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम इज H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। ये कलर्स वाले हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ हाइड्रोजन। शायद तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। ईच एंड एवरी एटम हैज इट्स ओन सिग्नेचर। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, वो उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता स्पेक्ट्रम के हिसाब से। हर एक एटम, हर एक एलिमेंट का स्टूडेंट्स, हर एक एलिमेंट का अलग अलग कलर कोड होता है, हर एक का सिग्नेचर अलग है। किसी दो एलिमेंट या दो एटम का सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता। तो ये जो H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा क्या है? ये सिग्नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी जब भी तुमने हाइड्रोजन को एक्साइट किया ना स्टूडेंट्स, we start exciting hydrogen, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं from 3, 4, 5, 6 to 2, so they give only specific colors. They give only specific colors, starting from shortest wavelength to the longest wavelength we consider. The longest line in the spectral series is shortest in wavelength. That is violet 2, violet 1, blue, red, like that we consider. तो ये उसका सिग्नेचर हुआ। वो सिग्नेचर को no other element, no other atom will match up with it.
स्टूडेंट्स उससे फिजिसिस्ट को पता चला, समझ में आ रहा है, what exactly is existing inside the sun. Students, the sun, SUN, sun consists of what? Sun consists of hydrogen and helium भी consider. ये physicist को बैठे बैठे कैसे पता चला? By simple spectrography भी consider. Spectrometer was a device. वहां से जो लाइट आती है उनके रेडिएशंस की परफेक्ट वेवलेंथ उन्होंने मेजर की और वही चीज यहाँ पे एलिमेंट्स लिए उन्होंने और उन एलिमेंट को हीट करके उनकी लाइट का वेवलेंथ उनसे मैच करना चाहा। तो जो कंपाउंड की वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट उनसे मैच हुई, they said that that is the element. Nobody can go inside the sun to find out the elements. Can you go towards the sun to find out the elements? No. तो अर्थ पे बैठे बैठे उन्होंने पता चल किया कि what can be the elements inside it, and that is all because of this radiation. तो ये वाला तुम्हारा विजिबल स्पेक्ट्रम में जाता है, सरबालमर विजिबल स्पेक्ट्रम में जाता है, पैशन नियर इंफ्रा, ये इनसाइड इंफ्रा यानी स्टूडेंट्स ये जितने भी अभी सपोज मैं वायलेट लाइट लूं ना स्टूडेंट्स, वायलेट, तो वायलेट भी का एक सिंगल वेवलेंथ है स्टूडेंट्स, उसका भी एक बैंड होता है, वायलेट के अंदर भी थोड़ा सा बैंडविड्थ होता है स्टूडेंट्स उसमें भी, लेकिन ये जो हम वायलेट अगर मैं बोलते हैं सपोज वायलेट इफ आई से 4000 एंगस्ट्रॉम, तो वो एक उसका मीन पोजीशन मैंने दिया, तो वैसे ही रेड के अंदर नियर इंफ्रा, रेड के बाद में नियर इंफ्रा, इन इंफ्रा एंड फार इंफ्रा। Is this all clear to all the students? Can I erase the students? Yes, sir. Okay, students. Now suppose if I happen to ask the students, can you tell me, calculate the wavelength students. अगर suppose मैंने पूछा calculate the wavelength students, okay? ध्यान से सुनना, calculate the wavelength of first 3 lines. Which lines? First 3 spectral lines, okay, in Paschen series. Wavelength of first 3 spectrum lines in Paschen series of hydrogen atom. Of hydrogen atom. स्टूडेंट्स जब मैं हाइड्रोजन एटम ले लेता हूँ ना स्टूडेंट्स, तो मेरा फॉर्मूला सीधा 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये हाइड्रोजन के लिए इन ब्रैकेट 1/n² - 1/p² आएगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तुम्हारा रेडबर्ग्स कांस्टेंट है क्या स्टूडेंट्स? रेडबर्ग्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट एग्जैक्टली कैपिटल आर वी कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इट? अगर तुम देखोगे ना फॉर एनी एलिमेंट z, for any element z, students, your Rydberg's constant, what exactly we consider is? It's z² n e raised to the power of 4 upon what exactly? 8 epsilon naught h cube c. Students, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, are you getting it? लेकिन ये किसके लिए स्टूडेंट्स? अगर तुम हाइड्रोजन के लिए लेते हो स्टूडेंट्स, तो मेरा z1 आ जाएगा,
ये ध्यान में रखना। Students, I can ask you for different elements also. अगर सपोज मैंने हीलियम ले लिया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर 4 आएगा। तो प्लीज डोंट पैनिक एट दैट मोमेंट कि ये आर क्या है। नाउ सपोज अगर मैंने फॉर हाइड्रोजन ले लिया, फॉर हाइड्रोजन ले लिया तो मेरा आर एच आ जाएगा। तो ये जेड की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। 10 e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इनटू सी, और ये क्या है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू हुआ। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स फॉर्मूला? R stands for Rydberg's constant. Students, is it clear? Can you get an answer for wavelength of first 3 spectral lines in Paschen series of hydrogen students? क्या आंसर निकाल सकता तू? Get me the answer with this. Anybody who can get me the answer, please fast. Now, when I speak about Paschen series to students, तुरंत तुम्हें तुम्हारा ये coordination मालूम होना चाहिए, कहाँ से शुरू होता है students? Am I getting it? यानी if I happen to go for its alignment, we consider, okay, यानी ultraviolet, okay, फिर आते हैं Balmer visible, am I getting it? उसके बाद में क्या आएगा तुम्हारा पैशन आता है, फिर ब्रैकेट आते हैं और फिर फंड। यानी ये क्या होगा ब्रैकेट के बाद में, यानी तुम्हारे इंफ्रा रेडिएशन के हिसाब से। स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारा लोएस्ट ऑर्बिट क्या होगा, p = 1, p = 2, p = 3। सी जब भी करने से पहले ये समझना जरूरी है, यानी तुम्हारे हाई एनर्जी लेवल से कहाँ पे आना चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट 3 लाइंस। फर्स्ट 3 लाइंस का मतलब क्या, तुम्हें आना है p = 3 पे, तो तुम ट्रांजिट कहाँ से करोगे, तुम ट्रांजिट करोगे n = 4, n = 5, n = 6, यानी 4 to 5 करोगे तो मुझे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगा। 5 to 3 करोगे तो मुझे सेकंड मिलेगा। 6 to 3 करोगे तो मुझे थर्ड मिलेगा। आ गया तुम्हारा p और n की वैल्यू फॉर 3 स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ये हुआ तुम्हारा वेवलेंथ इन द फर्स्ट केस, wavelength in the second case, wavelength in the third case. Can you get an answer? Why not? I will substitute the values and get the answer for all three. Lambda for passion, okay, for the first one. Lambda for second, passion series, okay, and lambda for third, passion series. Solve and get me the answer for all three students. और ये हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट्स, so Z is equal to 1. Yes, anybody?
सिंस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे चुका हूं मैं। Since anybody is getting it 1/λ, मुझे लैम्डा चाहिए, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जब तो जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें लैम्डा नेगेटिव में आएगा। देखो तो पहला वाला अगर तुम सॉल्व करते हो तो 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल आर इनटू ब्रैकेट 1/n² यानी n क्या होगा 4, तो 1/16 माइनस 1/p, p कितना दिया 3, तो ये 9 हो जाएगा। सॉरी 1/p² माइनस वेरी सॉरी 1/, सॉरी वेरी सॉरी p² वेरी सॉरी p² माइनस n²। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो 1/9 होगा और 1/16 होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। एग्री? because it's 3 square and n is 4 students, तो ये क्या होगा 1/λ क्या होगा r 16 minus 9 upon, agree students, 16 9 is 144, तो students lambda क्या होगा 144 upon 16 minus 9 is how much 7 times r, and lambda is equal to 144 upon 7 into ये क्या है 1 upon what is r we consider 1.097 into 10 raised to minus 7 हो जाएगा। Students, are you getting it? Is क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दिस इज 1/p² माइनस n², प्लीज, क्योंकि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा। n इज हाई एनर्जी लेवल एंड p इज लोअर एनर्जी लेवल। स्टूडेंट्स, are you getting it? वन 144/7 r मिलेगा। अजफर 144/7 r मिलेगा। नाउ कैंसिलेशन क्या होगा 7 2 सा 14 हो जाएगा, ये 0 होगा, प्लस 7 5 सा 35, 5 0, 7 7 सा 49, तो अप्रोक्सीमेटली लैम्डा इज 20.57 upon 1.097 into 10 raised to minus 7. So can you take this as approximately 20.6 upon 1.1 into 10 raised to minus 7? So now when you solve it, what exactly are you consider in this case? क्या आंसर आएगा तुम्हें? 1 डेसिमल निकाल दिया, तो again you can consider in that case, you can remove the decimal in that case. 11 1s 11, carry over 8, 11 7s are यानी approximately 1.7 1.8 के आसपास तुम्हें आंसर मिलेगा। तो जब भी तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा लैम्डा 1 आना चाहिए स्टूडेंट्स। if I'm writing it in the power of 10 to minus 6, 1.876 into 10 raised to minus 6 मीटर होगा। तो लैम्डा 2 होगा तुम्हारा 1.282 into 10 raised to minus 6 मीटर होगा स्टूडेंट्स। लैम्डा 3 होगा तुम्हारा 1.094 into 10 raised to minus 6 मीटर। तो क्या ये क्लियर है? यस सर। और जब तुम सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे केयरफुली तुम ऑब्जर्व, प्लीज इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये तुम्हारा लॉग कैलकुलेशन है।
यहाँ पे मुझे आंसर आया था 1.7 के आसपास, आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ 17 के आसपास आ रहा था, then shifted decimal you can get your answer accordingly. लेकिन स्टूडेंट जब भी तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, मुझे बताओ तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 या लैम्डा 3? तुम क्या बोलोगे? लैम्डा 3। लैम्डा 3 का मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? तुम बोलोगे सर ऑर्बिट नंबर 6 से ऑर्बिट नंबर 3। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। ये कौन सा सीरीज है? ये पैशन सीरीज है। यानी पैशन सीरीज का मतलब क्या हुआ? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्टूडेंट्स, group of spectral lines are called a spectral series. Each spectral line correspond to a particular spectral wavelength. लेकिन अगर ये तीनों में से तुमने डिसाइड किया तो कौन सा सबसे तुमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिला है? तो बोलोगे सर लैम्डा 3 इज द शॉर्टेस्ट, उसके बाद में लैम्डा 2, उसके बाद में लैम्डा 1। उसका मतलब ये होगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट और ये हुआ तुम्हारा लॉन्गेस्ट। तो स्टूडेंट्स क्या तुम कुछ कंक्लूड कर सकते हो डायग्राम के हिसाब से? डायग्राम के हिसाब से क्या कंक्लूड करोगे? तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सर डायग्राम के हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करूं, देन द लॉन्गेस्ट लाइन, students, the longest spectral line in a given series, listen carefully to the English, the longest spectral line for a given series is always shortest in wavelength, and the shortest spectral line in a given series will be always longest in wavelength. क्या ये कंक्लूजन क्लियर हुआ यहाँ से? तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने? सबसे लंबा लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट ही होगा। तो देखो ना, अभी ये पैशन सीरीज के बारे में हम लोग ने किया है, ये अल्फा लैम्डा 1 लैम्डा 3। अभी जंप कहाँ से कहाँ हो रहा है? सर जंप हो रहा है 6 to 3, 5 to 3, 4 to 3। सपोज अगर मैं 7 to 3 लेता हूँ और फिर मैं इन्फिनिटी, चलो इन्फिनिटी से लेता हूँ, इन्फिनिटी से कहने से सबसे लॉन्गेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, तो उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए। क्या कर सकते हो? व्हाई नॉट? अभी देखो सीधा फॉर्मूला में डालते हैं हम, इसी फॉर्मूला में डालता हूँ मैं अभी, इन्फिनिटी से लेते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? उसका आंसर इससे मैच करते हैं स्टूडेंट्स। So what exactly are considered? Formula क्या है स्टूडेंट्स? 1 by lambda is equal to capital R students into bracket 1 upon e square minus 1 upon n square. So 1 by lambda is equal to capital R 1 upon कहाँ पे हमें पहुंचना है सर? ऑर्बिट नंबर 3 यानी 9 पे आएगा। Agreed? Minus 1 upon infinity the whole square. So what is 1 upon infinity the whole square is 0. So 1 by lambda is equal to R by 9. So what is lambda? 9 by R. यानी लैम्डा क्या होगा? 9 अपॉन 1.097 इंटू 10⁻⁻⁷ ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व करूँ तो लैम्डा क्या होगा सर? 9 अपॉन 1.1 में लेता हूँ, राउंडिंग अप टू 1 से टू सिंपल फिगर्स, तो ये क्या होगा? 90 अपॉन 11 इंटू 10⁻⁷, तो 11 8 जार 88, 11 8 जार 88, 88.20 आएगा। 11 1 जार 11, एग्रीड? तो वापस बचा 9, 11 8 सा इंटू 10⁻⁻⁷, मुझे चाहिए -6 में, तो इंटू 10 अपॉन 10, यानी मेरा आंसर क्या होगा? लैम्डा फॉर इन्फिनिटी के लिए तो क्या होगा? 0.818 इंटू 10⁻⁻�6 मीटर होगा। इज इट अ शॉर्टर? इट इज अ शॉर्टर वेवलेंथ स्टूडेंट्स? Students, are you getting it? Students getting it? अरे हाँ या ना बोलो तो खत्म करूँ मैं। हाँ स्टूडेंट्स? Now यही चीज, now I want to go for Yes, sir. बाल्मर सीरीज के बारे में निकाल दो स्टूडेंट्स। चलो बाल्मर सीरीज किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? विजिबल स्पेक्ट्रम।
और स्टूडेंट्स जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं मालूम है, सारे सीरीज के शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स लर्न कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। लाइमन का शॉर्टेस्ट, लाइमन का लॉन्गेस्ट, बाल्मर का शॉर्टेस्ट, बाल्मर का लॉन्गेस्ट, पैशन का शॉर्टेस्ट, पैशन का लॉन्गेस्ट। दे ट्राई टू लर्न दिस, और जब ये एमसीक्यूज होते हैं तो दे ट्राई टू क्रैक इट मोर इजीली रादर देन सॉल्विंग। यानी ये चैप्टर स्टूडेंट्स इट्स मोर ऑफ मेमोराइजिंग। तुम जितना इसको मेमोराइज करोगे, जितना तुम इसको फॉर्मूलाज वापस लिखते रहोगे, वैल्यूज लिखते रहोगे, तब तक तुम्हें याद रहेगा। जब भी तुमने इसको छोड़ दिया, उसको रिवाइज करना, उसके फॉर्मूलाज रिकलेक्ट करना, उसकी वैल्यूज बार बार लिखना, तुमने अगर छोड़ दिया 5 दिन 7 दिन छोड़ दिया, 10वें दिन तुम्हें याद नहीं आएगा, सारे फॉर्मूलाज याद नहीं आएंगे, you'll forget it, volatile है। लेकिन जिसका 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर होगा, उनको सबको वापस रिकलेक्ट हो रहा है कि हाँ ये सब कुछ हम लोग ने पढ़ा हुआ। नाउ इफ आई हैव टू गो फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज किसमें होता है सर? ये तो विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगा। और देखो इसके अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जाता हूँ स्टूडेंट, तो व्हाट एग्जैक्टली आई कंसीडर विल बी, देन यू कैन कंसीडर इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर टू वेयर। So it's your principal quantum number we consider is lower energy level is 2, Lyman is 2 1, Balmer is 2 2, and I can have a transition from n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, and n equal to infinity। क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए? 4 वेवलेंथ चाहिए। चलो फाइंड आउट करके बताओ। 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, infinity to 2। यानी तुम्हें ये जो लॉन्गेस्ट है ना, ये हमेशा शॉर्टेस्ट इन वेवलेंथ मिलेगा, ये हमेशा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। और जो शॉर्टेस्ट लाइन है वो हमेशा तुम्हें मिलेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बाल्मर सीरीज के अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो इट्स अ सिग्नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टूडेंट्स। यानी ये जो H अल्फा है ना, अगर किसी ने पूछा ध्यान से सुना, फाइंड आउट H अल्फा फॉर बाल्मर सीरीज, तो H अल्फा का मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, H beta transition from 4 to 2, H gamma transition from 5 to 2, H delta transition from where to where, from 6 to 2। That's how we consider, वो डेल्टा के लिए। और ये तुम्हारा जो लास्ट वाला है वो इंफिनिटी इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे H अल्फा की वैल्यू चाहिए, ओके, लैम्डा फॉर H अल्फा, लैम्डा फॉर H बीटा, लैम्डा फॉर H गामा। जैसे मैंने H लिख दिया तो व्हाट एग्जैक्टली माय Z विल बी इक्वल टू 1, तब जाके मैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट के अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू लिख सकता हूं। I get it? And finally I want for lambda for transition from infinity to 2। Get me the answers for this। Students, can you get it? क्या ये होमवर्क के लिए कर सकोगे? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. इसमें फॉर्मूला यही यूज करना है तुम्हें। हाँ, वो ध्यान में रखना कि H अल्फा के टाइम पे तुम्हारा P क्या होगा और N क्या होगा। यहाँ पे N क्या होगा सर 3, यहाँ पे P क्या होगा 2, यहाँ पे N क्या होगा 4, P क्या होगा 2, N क्या होगा 5, P क्या होगा 2, N क्या होगा infinity, P क्या होगा। Is that clear? Okay, students, next lecture students will be continuing further, okay? Seems that they have come, got a call. Okay, students, kindly solve this and keep it ready for the next sessions, okay?